Hello, friends. Welcome to our YouTube channel, yours truly G. And this series is the continuation of the previous series that we have already started regarding computer network and information security. And this video is very useful for your upcoming IBPS IT officer examination or Central Bank of India specialist officer examination or any computer science competitive examination. Let's get started. Before starting the slide, I just wanted to request you guys that please subscribe my channel. Okay, you can see my channel name at the top right corner. So in this slide, we have covered networking devices or as I already told, we have to cover all the topics very smartly. Okay, so I have taken each and every points that already asked in many competitive examination and the important points as well. So हम लोग बहुत ही short में और to the point पढ़ने जा रहे हैं. Okay, and we will cover each and every topics related to the in computer network and information security, and that gonna very useful for your upcoming Central Bank of India recruitment examination and IBPS IT officer specialist officer examination especially. So let's get started. Guys, the first internetworking device is repeater. Okay, the main importance on the previous year question that already asked regarding repeater is a two-port device. Okay, it's a two-port device only. It basically forward every frame that it receives. Okay, so it's just a hardware device. It is not there is no any filtering capacity. कोई भी filtering capacity नहीं होता है repeater के पास. जो भी फ्रेम आता है it just forward it to the next node. तो ये इसके पास कोई फिल्टरिंग कैपेसिटी नहीं होती है, ये एक प्योर हार्डवेयर डिवाइस है. ओके, सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट्स जस्ट फॉरवर्ड एवरी फ्रेम दैट इट रिसीव एंड इट्स जस्ट अ प्योर हार्डवेयर डिवाइस. It basically increases the strength of the signal. So repeater, what a repeater does is like it increases the strength of the signal. अगर जैसे हमारे पास जो strength segment है, अगर segment का length अगर बढ़ाना है तो you can't take the segment. जैसे हम लोग ने पिछले videos में देखा था, like if you are using a coaxial cable or twisted pair, there is a segment length size. Okay, so ये एक segment length के बाद अगर हम लोग उस strength को बढ़ाना है तो हम लोग repeater use करते हैं. Okay, so repeater basically इट्स अ रीजनरेटर एंड इट्स नॉट द एम्पलीफायर. आप रिपीटर को एम्पलीफायर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं. ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कैन रिपीटर बी एम्पलीफायर इफ, तो आंसर वुड बी नो, बिकॉज रिपीटर एम्पलीफायर नहीं हो सकता है. ठीक है, क्योंकि ये सिग्नल के बस स्ट्रेंथ को चेंज कर रहा है. ठीक है, सिग्नल के बिहेवियर है उसके प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर सकता. ये जस्ट एक रीजनरेट करता है. ओके, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फिजिकल लेयर डिवाइस है जो कि पूछा गया है. रिपीटर जो है वो किस लेयर में काम करता है, तो इट वर्क्स इन द फिजिकल लेयर. ओके, एंड इट passes डिजिटल सिग्नल बिट बाय बिट इन बोथ द डायरेक्शन बिटवीन टू सेगमेंट. एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है, तो रिपीटर टू पोर्ट डिवाइस है. इट जस्ट passes द फ्रेम बिट बाय बिट इन बोथ द डायरेक्शन. ओके, सो रिपीटर जो है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है एंड इट हैज नो एनी फिल्टरिंग कैपेसिटी. इज जस्ट अ प्योर हार्डवेयर डिवाइस. ओके, हार्डवेयर डिवाइस है, इसलिए ये स्टोरेज भी नहीं करता है. जो भी फ्रेम आता है वो जस्ट इट्स फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट नोड. Okay, so these all are the important points related with the repeater that we have to remember and understand. So the next networking device is hub. Hub is just a multi-port repeater. As we just saw that repeater has only two port. Okay, so hub में क्या होता है, इसमें multi-port होता है. ठीक है, so multi-port repeater को हम लोग hub बोलते हैं. ये questions आया हुआ है, multi-port repeater is what, so the answer would be hub. So it is also just forward and no filtering capacity. It's a pure hardware device. Okay, hardware, because if it is storing something, then you can say it has a software capabilities as well. लेकिन ये क्या कर रहा है, simply frame को क्या करता है, रिसीव करता है एंड फॉरवर्ड करता है, रिसीव करता है एंड फॉरवर्ड करता है. तो अगर ये स्टोर करेगा तभी उसमें कुछ सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होंगे, लाइक बफर इन्वॉल्व होंगे एंड ऑल दोस थिंग्स. सो इट इज नॉट स्टोरिंग एनीथिंग, इट्स जस्ट फॉरवर्डिंग व्हाट द पैकेट रिसीव करता है वो.
कोलिजन इसमें होता है, सिंस ये मल्टी पोर्ट रिपीटर है तो ऑब्वियसली कोलिजन्स होते हैं। ओके, एंड अगेन इट्स अ फिजिकल लेयर डिवाइस, क्योंकि रिपीटर और हब में बस यही एक अंतर है कि ये एक मल्टी पोर्ट होता है और रिपीटर में बस दो ही पोर्ट होते हैं। So that is the only difference we have with repeater and hub. So obviously repeater is also a physical layer device, no doubt. एंड बेसिकली ये क्या करता है, स्टेशंस में जो नोड है उस पे एक मल्टी लेवल हायरार्की क्रिएट करता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं तो यू कैन क्रिएट द हायरार्की। सो द important point that we have to take from hub is it's a multi port repeater and it's work on the फिजिकल लेयर डिवाइस। ओके, सो आई होप ये रिपीटर एंड हब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, रिपीटर और हब जो है वो फिजिकल लेयर में काम करते हैं। जो भी फ्रेम आता है उसको जस्ट फॉरवर्ड करते हैं दूसरे नोड पे। प्योरली हार्डवेयर डिवाइस है ये और फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। ओके, so we have completed repeater and hub. Now let's move to bridge, and bridge is quite important basically, and that's why I have kept all the important and previously asked question there here. So the first point is commonly used to connect two similar or dissimilar LAN. So we have LANs, okay, लोकल एरिया नेटवर्क जो हमारे पास होता है उसको अगर हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं एक सेम नेटवर्क में, ओके, द नेटवर्क विल बी सेम। सो हम लोग क्या करते हैं, ब्रिज को यूज कर सकते हैं। we can use the bridge just to connect the two similar or dissimilar LAN. यहाँ हम लोग सी दिस रिपीटर और हब में हम लोग सेगमेंट को कनेक्ट कर रहे थे, बट इन ब्रिजेस वी आर जस्ट कनेक्टिंग द लैंड्स। सो यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, क्योंकि ये क्वेश्चंस आता है कि इफ यू वांट टू कनेक्ट टू लैन और टू डिसिमिलर लैन, which networking device you have to use? So the answer would be bridge. Okay, it obviously works at data link layer. Okay, bridge जो है वो data link layer में काम करता है and it store and forward ethernet frames. See this, यहाँ पे एक अब स्टोरेज कैपेबिलिटी भी ऐड हो गई है। ठीक है, अभी तक हमने देखा रिपीटर एंड हब आर नॉट स्टोरिंग एनीथिंग, दे आर जस्ट फॉरवर्डिंग व्हाट दे आर रिसीविंग, बट इन ब्रिज दे आर ऑल्सो स्टोर एंड फॉरवर्ड इथरनेट फ्रेम। ठीक है, ब्रिजेस जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड होस्ट आर अनअवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्रिजेस। ठीक है, ब्रिज जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं और होस्ट को पता नहीं रहता है कि ब्रिज है या नहीं। ओके, एंड ब्रिज डू नॉट नीड टू बी कॉन्फ़िगर्ड, ये जस्ट एक प्लग इन प्लग आउट डिवाइस है, आप मार्केट से लाओ एंड यू कैन यूज दैट, यू डोंट हैव टू कॉन्फ़िगर। ओके, सो ब्रिज को कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं होती है, ब्रिज ट्रांसपेरेंट होता है। ब्रिज इज वर्किंग ऑन द data link layer and it is used to connect two similar and dissimilar LANs. Okay, so bridge काम कैसे करता है, it just examine the frame header and selectively forward frame based on the MAC destination address. जो भी MAC का जो destination address होता है उसके आधार पे on the basis of MAC destination address ये frame के header को forward कर देता है। ठीक है, frame को forward कर देता है। सो बेसिकली क्या करता है ये, ब्रिज हैज एक्सेस टू फिजिकल एड्रेस इन द सेम नेटवर्क। उस सेम जितने भी उस नेटवर्क में जितने भी फिजिकल एड्रेस है उन सबका एक्सेस किसके पास होता है, ब्रिज के पास होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिजिकल एड्रेस ओनली इट स्टोर एंड फॉरवर्ड द फ्रेम। सो ब्रिज बेसिकली इस सेम नेटवर्क में कैसे कनेक्ट होता है। सपोज यू हैव अ फ्यू नोड्स दैट आर ऑलरेडी कनेक्टेड इन अ टोकन रिंग फैशन एंड फ्यू नोड्स आर देयर विच आर कनेक्टेड इन अ टोकन बस फैशन। सो ब्रिज जस्ट कनेक्ट दिस टोकन रिंग एंड टोकन बस टोपोलॉजीज और कनेक्शन। सो एक टाइप का सेम नेटवर्क में ये कनेक्ट करता है डिफरेंट लैन सेगमेंट को। ओके, सपोज ये हमारे पास लैन सेगमेंट है जिसमें 7 to 8 नोड्स हैं जो कि टोकन रिंग में कनेक्टेड हैं। वी ऑलरेडी सॉ व्हाट इज टोकन रिंग एंड ऑल दोस थिंग्स इन द प्रीवियस वीडियो। So suppose यहाँ पे 7 nodes हैं, they are connected in a token ring fashion, and suppose there are 5 to 6 computers or nodes connected in a token bus. Okay, so if you want to connect these two topologies, the bridge would be a better idea. So bridge जो है वो एक similar और dissimilar LAN को connect करता है, but the network would be same. And bridge has a bridge table, ये बहुत ही important है, which contain node LAN addresses, bridge interface and timestamp. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिज टेबल में क्या-क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, नोड LAN एड्रेस, ब्रिज इंटरफेस एंड टाइम स्टैम्प।
okay, and it is fine for medium size organization but are inadequate for large installation, they require routers. ठीक है, ये मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो ब्रिज से ठीक है, बट इफ यू आर कंसिडरिंग द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, you know, I would recommend the bridge would not be a good option. Then we have to come to routers only. Okay, and one more important point जो कि पूछा गया है, like you know, ब्रिज जो है वो स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम पे बेस्ड होता है, ये इम्प्लीमेंट जो होता है वो स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम करता है. ओके, तो यहाँ पे फ्यू मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर देयर दैट यू हैव टू नोट डाउन समवेयर एंड यू हैव टू रिमेंबर इट एज वेल, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज हैं जो कि मैंने एक पॉइंट के टर्म में यहाँ पे मेंशन किया है. ओके, सो आई होप ये 1, 2 and 3 नेटवर्किंग डिवाइसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ से नोट डाउन कर लिया होगा. ओके, so now let's move to the next slide, or the next networking device. So our next networking device is routers. Okay, so routers भी very important categories में से एक है. It is used to connect network that use different technologies. Okay, and here the most important point that is distinguished between bridge and router is it is used to connect two different classes and two similar type of network. See this here, the class are different. You know, suppose you have a class A network and class C network. For if you want to connect class A and class C network, router would be the best option. Okay, and or two similar types of network. Suppose यहाँ पे हमारे पास एक network है, suppose network A, and here this network is C. If you just wanted to connect it, you can connect it through router. Router would be the best option. So दो network को connect करना है या फिर दो different classes को connect करना है, class A, class B, you know, class A, class C, that type of class को आपको connect करना है, तो router is the best option. आपको difference समझ में आना चाहिए क्योंकि questions पूछे जाते हैं like how you will connect two different classes or two similar type of network. ओके, सो ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से याद रखना पड़ेगा ये सारी चीजों को. इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू द इन स्टेशंस अनलाइक ब्रिजेस. ब्रिज क्या होता था, ट्रांसपेरेंट होता था, होस्ट को पता नहीं रहता था वेयर द ब्रिज हैज बीन इंस्टॉल्ड, बट द राउटर्स आर यू नो नॉट ट्रांसपेरेंट. ठीक है, राउटर्स भी एक स्टोर एंड फॉरवर्ड डिवाइस है, सो ये प्योरली हार्डवेयर नहीं है सिंस इट इज स्टोरिंग समथिंग, बिकॉज सो ये प्योरली हार्डवेयर डिवाइस की कैटेगरीज में नहीं आता है. एंड राउटर मेंटेन द राउटिंग टेबल and implement the routing algorithm. Routing algorithm भी एक बहुत important you know topic है जो कि अभी हम लोग next videos में cover करेंगे. Okay, I have just mentioned here like just to distinguish between bridge and router. Like bridge was maintaining the bridge table, the router are maintaining the routing table, and it is implemented by the routing algorithm से implement होता है. It works up to the network layer. सबको पता है network layer में ही routers काम करता है और ये IP कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर होता है. आपको पता है आप घर में भी अगर राउटर यूज करते होंगे, सो इट रिक्वायर्स द कॉन्फ़िगरेशन. ब्रिज क्या है, आपने जस्ट मार्केट से खरीदा एंड यू कैन यूज द ब्रिज, बट राउटर्स में क्या होता है, यू हैव टू कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस. सो दैट्स व्हाई राउटर रिक्वायर्स आईपी कॉन्फ़िगरेशन. ओके, और ये मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्टिंग्विश करने के लिए लिख दिया है, जस्ट यू नो सो दैट द यू नो क्लैरिटी विल बी देयर बिटवीन ब्रिज एंड राउटर. सो ब्रिज जो है वो ब्रिज टेबल मेंटेन करता है और स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम यूज होता है. राउटर में राउटिंग टेबल होता है और राउटिंग एल्गोरिदम यूज होता है. ब्रिज जो है वो डज नॉट रिक्वायर कॉन्फ़िगरेशन, राउटर रिक्वायर्स आईपी कॉन्फ़िगरेशन. इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे. एंड जस्ट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आजकल पूछा जाता है, व्हाट इज ब्राउटर. ओके, ये पूछा गया क्वेश्चन है. सो ब्राउटर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ राउटर एंड ब्रिज. इफ यू वांट द कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ राउटर एंड ब्रिज, so you know that a special term is there which is known as browser. So browser is also a important terminology that you have to consider. Okay, so browser is nothing but the combination of router and bridge. Okay, and we have one more networking devices which is a gateway. Okay, so whenever you want to route the traffic outside the network, okay, ये आपको याद रखना, अगर अपने नेटवर्क के आउटसाइड में भेजना है, then gateway is the best option. यहाँ पे देखो आप डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को भी कनेक्ट करता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस को भी कनेक्ट करता है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे. ओके,
and is connect dissimilar LAN of different topology using different set of communication protocol. तो ये तीनों पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गेटवे के रिस्पेक्ट में, और ये सारे एमसीक्यूज हैं। ओके, गेटवे के डेफिनेशन के टर्म में पूछे जाते हैं, लाइक यू नो या फिर प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, सो आप इसको नोट डाउन कर लें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वर्चुअल लैन, वी लैन जिसको कहते हैं। सो वर्चुअल लैन इज नथिंग बट इज जस्ट अ logical terminology that we have given. Okay, so it's just a physical topology to logical topology. It's a conversion from physical to logical, just to extend the local area network. We have given the term VLANs basically. तो आपको याद रखना VLAN is nothing but it's a logical topology. Okay, so yeah, so VLAN is virtual LAN. Okay, so now moving to the next slide. ओके, सो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं सोच रहा हूँ कुछ भी स्किप नहीं करूँ, बिकॉज ये सब भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लाइक नो वन विल गोइंग टू रिमेम्बर व्हाट विल बी द एफएम रेडियो रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज। सो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कभी कभी, और हम लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो मैं ऑलरेडी आई टोल्ड एवरीथिंग, लाइक इन दिस वीडियो सीरीज वी विल कवर ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी टॉपिक्स को मैं बहुत ही स्मार्ट वे में कवर करने वाला हूँ, जैसा कि अभी तक हम लोग कर रहे हैं। सो एक छोटा सा टर्म है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो बेसिकली जो जो लोग टेलीकम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस ब्रांच से हैं, दे कैन अंडरस्टैंड इजीली, बट एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे रख देता हूँ, लाइक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है। सो द टाइम स्केल इज शेयर्ड। ओके, टाइम डिवीजन, द नेम इटसेल्फ स्पीक्स एवरीथिंग, टाइम को हम लोग शेयर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे टाइम शेयर हो रहा है। ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शेयर हो रहा है, एफडीएम इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे टाइम का शेयरिंग हो रहा है। टीडीएम जो है ये आप याद रखिएगा, यूज विद बोथ डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल, बट फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज ओनली फॉर द एनालॉग सिग्नल। यहाँ पे बस एनालॉग सिग्नल के लिए ही यूज होता है। ओके, और टीडीएम जो है वो दोनों सिग्नल्स के लिए यूज हो सकता है। इसमें नॉइज इम्यूनिटी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, वी कैन रेसिस्ट द नॉइज। ठीक है, सो सिग्नल का स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज नॉइज इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा होती है, और यहाँ पे लेस होता है नॉइज इम्यूनिटी। और यहाँ पे आप याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में चैनल सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो ये चैनल सिंक्रोनाइजेशन की यहाँ जरूरत पड़ती है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, ये पूछा गया है। एंड बेस बैंड नेटवर्क जो होता है, बेस बैंड नेटवर्क जो है वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे बेस्ड होता है। तो ये सारे फ्यू पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। ओके, जस्ट बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू टीडीएम एंड एफडीएम, ताकि जब क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आसानी से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कर लो। एंड ये इंपॉर्टेंट रेंज है, सारे रेंज यू डोंट हैव टू कवर इट। ओके, बट ये सारे 4 इम्पॉर्टेंट रेंज हैं जो कि आईटी ऑफिसर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। वन, एक एफएम रेडियो ट्रांसमिशन पूछा गया है, लाइक एफएम रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो किस रेंज में आता है। रेंज वाज नॉट asked, but they asked like very high frequency range, medium frequency range, or low frequency range. They have given the 4 options, so the correct answer was or is very high frequency range में एफएम रेडियो आता है। तो आपको रेंज भी अगर आप याद कर लो देन इट वुड बी अ बोनस फॉर अस। ओके, सो एएम रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो मीडियम फ्रीक्वेंसी में आता है, एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी स्टार्ट्स फ्रॉम 300 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज। ओके, एंड एफएम रेडियो ट्रांसमिशन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में आता है, एंड स्टार्ट्स फ्रॉम 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। एंड टीवी जो है वो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज में आता है। ओके, दैट ranges from 300 megahertz to 3000 megahertz. And last is satellite or radar communication is extremely high frequency। ठीक है, इट्स मोर देन 30,000 मेगाहर्ट्ज। तो ये चारों पॉइंट्स आप याद रख लीजिएगा, बिकॉज ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और आते हैं उस समय छूट जाते हैं, बिकॉज हम लोग इसको स्किप कर देते हैं व्हाइल स्टडिंग, एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर। ये भी बहुत छोटी सी चीजें हैं लेकिन हम लोग स्किप कर देते हैं, लाइक टी कैरियर सिस्टम।
So T carrier system, if you are giving any CSIT level examination, okay, so T carrier system एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, like T1 carrier का speed क्या है and how many channels can be possible. तो ये four carrier system we have from the T carrier system, only four होते हैं and that's you have to remember it anyhow. सो टी कैरियर सिस्टम जो है वो 1960 में बेल सिस्टम्स के द्वारा डेवलप किया गया था एंड इट इज बेस्ड ऑन पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। पल्स कोड मॉड्यूलेशन ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज नथिंग बट इट्स अ when you are converting the analog signal to digital signal, so the whole mechanism comes under pulse code modulation. Okay, so यहाँ पे आपको ये चीजें नहीं important है। what importance is T1 carrier system का जो speed है वो 1.444 mbps है and the channel is 24 channels। T2 carrier system में है 6.312 mbps and 96 channels। T3 carrier system में 44.736 mbps and 432 channels and last T4 carrier में 274.176 mbps and 4032 channels। so ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, पूछा गया है दो तीन एग्जाम्स में, लाइक T2 कैरियर, T3 कैरियर का व्हाट इज द स्पीड और व्हाट इज द चैनल। सो फोर ही कैरियर है, आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, सो एज आई प्रॉमिस, लाइक हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड, और बहुत ही स्मार्ट वे में। जैसे आप देख रहे हो सारे ही पॉइंट्स हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और प्रीवियसली आज क्वेश्चन ही लिया है। हम लोग ने थ्योरी यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं एंड वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ बिकॉज this is a competitive examination. Okay, so you just have to mark the correct answer out of four, so that is the best way to cover anything. Okay, so I am just requesting once again, please subscribe my channel, yours truly Z, and okay, we'll upload all the relevant videos related to the IT officer examination continuously and very shortly. Okay, so I think इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। Thank you for watching my video. Thank you guys.